6 only. So 6 group are present in P block from 13 to 18. So now we will study about their properties. 13, 14, 18. Electronic configuration: NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5, NS2, NP6. First member: boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, and helium. Highest oxidation state: +3, +4, +5, +6, +7, and +8. Okay. So we call group 3 as boron family. Next is carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogen family, and 18th group noble gas. We also call oxygen family as carbogens and noble gases as inert gases. Now, one by one, we will study about their trends. So we have discussed about the trend of atomic size and periodicity. Now we will talk about ionization energy. We have also discussed about it. 13th, 14th. So for 13th, it is like this. So you can remember this as bath gai. Okay, and it is very important. So for 14th, the trend is carbon, silicon, germanium. Last में ये हो जाता है swap. Okay. For remaining 15th group to 18th, top to bottom, ionization energy decreases. Okay. Then density. So in group 13 to 18, down the group density increases. Density increases down the group. Note, density of diamond is more than silicon, and density of graphite is less than silicon. For boiling point, for 13 to 14, down the group, it decreases. Boiling point decreases. Okay. From top to bottom, it decreases. And for 15 to 16, it increases. Okay. Top to bottom, boiling point increases. So you can remember this by 13 to 14 was there in 11th class levels and remaining are in 12th class levels. Okay. So 12 जो है वो 11 से बड़ा है. So जो छोटा है उसमें कम होगी boiling point, जो बड़ा है उसमें बढ़ेगी boiling point. Okay. Next is melting point.
So in this trend is like first is boron, then this gallium, at last 4 3. For 14th, same as ionization energy. Then for 15th, fifth, fourth, first, second, third. For oxygen, this is the trend. And for 17th and top to bottom, melting point increases. Okay, so now before going into the reactions, we will discuss about back bonding. So for back bonding, condition should be for one element should be from second period and other element must belong to third period. Okay, अगर जो other element है it is from fourth or fifth period, तो जो intensity of back bonding होती है that decreases. Okay, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो दिखाती है back bonding that is from third period. एक second period का होना चाहिए, उसके adjacent वाला could be from third, fourth, fifth, but ज्यादा इफेक्टिव third वाला होता है. So what happened? For example, BF3. Okay, this was the first condition. Second condition is जो second period वाला है that should have lone pair. जो third वाला है it should have vacant or vital. Okay, for example BF3. Now boron have empty orbital in it, empty p orbital, and फ्लोरीन हैज लोन पेयर्स. सो ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देगा एंड हियर एफ विल एक्ट एज डोनर एंड बी विल एक्ट एज एक्सेप्टर. And also back bonding is inversely proportional to the Lewis acid strength. Okay, in the case of BF3, BCl3, BBr3, PI3, so back bonding will be like this. Okay, अभी यहाँ से यहाँ back bonding is increases, so Lewis acid strength will decreases. Okay, second there will be change in hybridization. So what will be the hybridization of nitrogen over here? One, two, three, and one lone pair. 4. It should be sp3. Okay, but now this boron has empty orbital and there is lone pair on nitrogen, so it will show back bonding. Okay, अभी back bonding की वजह से क्या होगा? Lone pairs are not there, so now because of back bonding it will change into hybridization will change into sp2. Okay, so in this nitrogen is having sp2 hybridization. So you can write if lone pairs participate in back bonding, then it is not considered in hybridization. Okay, और ये जो रिंग है we call it as inorganic benzene.
It is more reactive than organic benzene. Okay. अभी जो ये बैक बॉन्डिंग होती है, दिस वुड बी पी पाई बैक बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग. नाउ पी पाई वी हैव डिस्कस्ड, जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स में जो हो एम्प्टी एक, like in BF3, B is from second period, fluorine is also from second period. Okay, इसके जो, तो इनमें जो बैक बॉन्डिंग हुई वो हुई पी पाई. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. तो इसका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ जो होगी 2p, 2p मोर. अगर 2p से 3p जा रहा है देन उसका नेक्स्ट, और 3p से 4p जा रहा है तो सबसे कम. ओके, साइज इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस. Okay, so second period with lone pair and second period with vacant or vacant. For p pi d pi back bonding, in this p second period with lone pair will show back bonding with d, that is third period having empty or vacant or vacant. So in this case, silica is having empty orbital. Okay, that is 3d. Now nitrogen is from second period with lone pair, तो ये क्या करेगा, इसे बैक बॉन्डिंग दिखाएगा. Okay, so what will be the, wait, so can you tell me the hybridization in first case of nitrogen? Earlier it was sp3, right? Yeah, it is having one lone pair. Now that one lone pair is being donated. So अभी जो lone pair donate हो गया in back bonding, we will not consider that in hybridization. So now it will be sp2. Okay, just wait. Okay, so in second case the hybridization is sp3. Yeah. The shape in sp2 geometry will be trigonal planar. In the case of sp3 it is tetrahedron. We are talking about geometry. Shape will be trigonal pyramidal. So which one will be Lewis base? Lewis base. Second one. Second one will be nice. Yes. So in the case of these two, we have to say the acidic strength. So in first bonding, in first case there is no back bonding, and in second there is back bonding. Okay, now
एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए प्रोटॉन को हम हटा देंगे एंड देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दिस नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल? सो इन फर्स्ट केस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू देखें तो इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम. बट अब इन सेकंड केस देयर इज बैक बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी मोर स्टेबल. ओके, कौन सा था ये, माइनस एम और प्लस एम? Minus. माइनस एम. ओके, सो दिस विल बी मोर एसिडिक. तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने का क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज देखना, ओके, कि किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, दैट विल बी मोर एसिडिक. So now we will talk about dimerization, in which 3 center 2 electron case, B2H6. So BH3 is electron deficient. Okay, so ये क्या करता है, एक डाइमर बना लेता है, in which there is banana bond. Okay, अभी जो ये वाला बॉन्ड है, दिस इज बनाना बॉन्ड एंड इन दिस देयर आर 3 एटम्स. ओके, एक एक दो तीन. बट इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 3 सेंटर्ड. ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के, वो तो उसने ले लिया, तो इट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. So hybridization is sp3. It is also electron deficient. So it will be Lewis acid. Okay. All 4 terminal, ये terminal bonds हैं. And 2 boron atom are present in same plane. Both bridging hydrogens are perpendicular to plane. So जो ये वाले bonds हैं, 1 2 3 4, along with these boron, they are in the plane. जो ये है perpendicular, means एक below है और एक above है. Okay, this is how they are present. So this was for boron, back bonding and boron. Now we will start with the next topic. So we have discussed about melting point, boiling point, ionization, energy trend, back bonding. Now we will start with inert wear effect. Okay. So group 13, 14, 15 and 16. So actually क्या होता है? If we talk about this, तो the electronic configuration is one s2, 2s2, 2p, 1. So down the group, as you can see, F subshell जो है वो fill हो रहा है. Okay. So you know that screening power of F is very low. Okay. So ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, in which sp1, अभी जो स्क्रीनिंग पावर है एफ सबशेल की वो बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो 6s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है जो
न्यूक्लियस की तरफ से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो 6s2 है वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं, तो इतनी ईजी से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप आते आते कम होने लग जाती है और लास्ट में से ये +1 हो जाती है। ओके, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 की होती है +3, तो ये +3 तक दिखा सकते होते हैं। बट जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ और सबशेल्स, जो 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने ज्यादा टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं टू द न्यूक्लियस, उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी इजीली नहीं जाते हैं। उसकी वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ये हर एक में ऑब्जर्व होता है। जैसे इसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 हो सकती है। ओके, जो लास्ट में आते आते पीबी की होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। इन द केस ऑफ 15 इट इज +5 और लास्ट ये हो जाती है +3 और दिस +6 एंड लास्ट में +4। तो ड्यू टू inert pair effect, ns electrons are reluctant to participate in bonding. Okay, तो जो common as we move down the group 13 to 16, stability of common oxidation will be, जो भी oxidation state है common वाली उससे -2 कर दो, उसकी उस oxidation state की stability बढ़ जाती है down the group, जो भी oxidation state है उस वाले group की। Okay, so in some cases question could be asked कि एक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो और लास्ट में आते आते पीबी की ऑक्सीडेशन भी 4 हो, इसे दिखा दे, तो उसमें यू हैव टू टेल विच वन इज लाइक लीस्ट स्टेबल, सो यू विल चूज पीबी बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +2 तक हो सकती है। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन भी था, एक मिनट। ओके, बाद में करेंगे क्वेश्चंस। So now we will start with some important reactions of group 13. So first of all, with अगर ग्रुप 13 से कोई भी एलिमेंट है, अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं O2 के साथ, so it will be E2O3, okay, and oxidation state will be +3. For example ये हो सकते हैं, so in this case ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक होगा। ओके, जो इनके ऑक्साइड्स होंगे दे विल बी बेसिक इन नेचर। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, हम लोगों ने करी थी बात, और इन विच वी आई गिव यू अ ट्रिक कि कौन से कैसे है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। सो इन सेकंड केस इफ अगर उनको नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराना है तो ऐसा सा कंपाउंड बनाएंगे वो, फॉर एग्जांपल AlN, एंड इफ दे हैव टू react with any halogen, in that case this will be the compound, for example BF3 BCl3 Bi3 AlCl3 AlI3. Okay, now TlI3 does not exist. Why? Because maximum oxidation state जो है इसकी +1 हो सकता है, so it is due to inert pair effect. Okay, so now we'll talk about the reactions with group 14. So with oxygen they can form either this or dioxide compound, and this the oxidation will be +2, in this case the oxidation will be +4. Okay, for example CO2 in this case this will be acidic, this will be neutral,
एंड दिस विल बी एम्फोटेरिक। इसमें भी जो SiO है दैट एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म। तो जो P ब्लॉक है ना उसमें मैक्सिमम आपको याद ही करने पड़ेंगे, कौन सा क्या बनाता है, कौन सा क्या नहीं बनाती। यू हैव टू रिमेंबर देम। रिएक्शंस जो है वो याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम कंटेंट है जो समझने का है, मैक्सिमम कंटेंट है जो याद करने का है। नाउ इफ दे रिएक्ट विद halogens, they can also form two type of compounds. So they can form dihalides or tetrahalides. Now stability of dihalides down the group increases. Why? Because inner pair effect की वजह से ही, क्योंकि डाउन द ग्रुप प्लस टू ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एंड टेट्रा की स्टेबिलिटी जो है दैट डिक्रीजेस। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कौन ज्यादा स्टेबल है, फॉर एग्जांपल सो दिस विल बी ट्रेंड। ओके, और जो टेट्राहेलाइड होगी उसकी जो होगी अपोजिट हो जाएगी ट्रेंड। नेक्स्ट रिएक्शन विद H2O। सो H2O के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं until unless it is in steam. अगर स्टीम है इन वेपर फॉर्म में H2O then it will react, otherwise it will not react. Okay, तो एक्चुअली इसमें भी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड Pb, जो Pb है that was supposed to react because of inner pair effect. Okay, but it still remains unreactive. Why? Because H2O है, ऑक्सीजन भी होगी तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है। ओके, तो वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसी से पहले रिएक्ट कर जाता है अगर हम उसको H2O के साथ रिएक्ट करने जाए तो। ओके, अदर तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 15 रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे या O5 5। तो OI minus of nitrogen and phosphorus are acidic. But NO2 or N2O are neutral. These are amphoteric and this is basic. Okay, and if we reacted with halogens +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, और उसमें भी जो पेंटाहलाइड्स हैं they will be more, they'll have more covalent character. और in this all are covalent except BiF3. एक और चीज, इफ यू रिमेम्बर फजान रूल, सो इन विच हमने बोला था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वो प्योर आयनिक नहीं होता, इन विच वी हैव सम ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर एज वेल। सो फॉर दैट हमने देखा था कि जो कटायन है दैट इज स्मॉल एंड अनायन इज मोर, बड़ा होता है साइज में ना। तो पोलराइजेशन जो था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज ऑफ कटायन। ओके, तो साइज कम होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। सो एक आइडियल जो होता है जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा दैट विल बी जिसमें कटायन है वो छोटा हो और अनायन बड़ा हो। सो अगर आप कहीं पे भी देखना हो ना कि कौन से कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होगा। ओके, सो डाउन द ग्रुप जो होता है कटायन का साइज इंक्रीज होगा तो जो कोवेलेंट करेक्टर है वो अपने आप ही डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से यू कैन सी कि क्या रहेगा कोवेलेंट करेक्टर का ट्रेंड। सो इसमें भी जो NX5 है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स बिकॉज नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्स कहाँ तक जा सकती है, +4 तक जा सकती है ना। ओके, बट रिमेनिंग की इससे ज्यादा हो सकती है। यू नो ना हाउ इट इज 4 फॉर नाइट्रोजन,
बिकॉज हाँ एक कोऑर्डिनेट करे 1 2 3 इट स्टिल हैज लोन पेयर, तो ये क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज +4। इनमें भी Br3 nitrogen I3 they are highly explosive. Okay, so preparation of N2, so प्योर वाला कहाँ से हमें कौन सी रिएक्शन से ज्यादा प्योर N2 गैस मिलती है, दैट वी आस्क्ड, मतलब बहुत सारी रिएक्शन है उनमें से जो प्योर वाली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे देन वी विल गेट बेरियम अलॉन्ग विद N2 और ये जो होगी बहुत प्योर होगी। एंड Na3 इसको भी हम हीट करेंगे तो Na+N2 ये भी बहुत प्योर होगी। देयर आर मोर रिएक्शंस बट इनमें जो N2 मिलेगी दैट वोंट बी प्योर। ओके, एंड अगर हम N2 गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज कलरलेस, odorless, and you know that it is diamagnetic. इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 3 एंड इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये इनर्ट होती है ना एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई जो पैकेजिंग होती है चिप्स और इन सब में भी ऐड नाइट्रोजन गैस ताकि ऑक्सीडेशन ना हो जाए फूड की, बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करती है, ऑक्सीजन होगा तो फिर वो रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीडेशन शो कर जाएगा, बट N2 गैस हम डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे। नाउ रिएक्शंस ऑफ N2, सो फर्स्ट अगर ये अपन किसी भी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा दे N2 की तो ये एक मेटल नाइट्राइड बना लेगी। सेकंड N2 plus O2 will give NO, and third N2 plus thrice 2 will give ammonia. This is Haber's process and it is very important. Okay, now we will study about group 16. First its reaction with oxygen के साथ react करके ही बना लेगा, and they all be acidic in nature. उसमें में SO2 TiO2, SO2 जो होता है बहुत अपने बहुत वाइडली यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑन बिहाफ TiO2 हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। वाई अभी ये भी ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर के ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज अभी अगर जो SO2 है अगर यूज इट एज रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 में चली जाएगी। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, सो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, +6 की ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो ज्यादा कहेगा कि हाँ मैं रिड्यूस करूंगा, तो दैट्स व्हाई ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता है या अपने यूज करते हैं। वेयर एज इन TiO2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 Te की। ओके, सो +4 है विच इज अनस्टेबल, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है तो इसलिए वो क्या कहेगा कि मैं रिड्यूस होऊंगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम करूंगा और ज्यादा स्टेबल बनूंगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज इट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और हेलोजेंस के साथ ये नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, या तो ये डाइहैलाइड कंपाउंड बनाएंगे या टेट्रा या हेक्सा। ओके, और हेक्सा में भी जो SF6 है ये ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, SCl6 और SBr6 ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं और ये ज्यादा ऑब्जर्व भी नहीं होते हैं। ओके, अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड की बात करें, H2O, H2Te, H2Se एंड H2S, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, फिर इसका एंड फिर इसका। ओके, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बट देयर इज वन एक्सेप्शन केस फॉर H2O व्हाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, अदरवाइज डाउन द ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है नॉर्मली।
Next, we will study about the reactions of phosphor. अब जो phosphor जो है वो नॉर्मली हमें P4 की स्टेट में मिलता है. ओके, जैसे कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता होता है, वैसे जो phosphor है वो हमें P4 की फॉर्म में मिलता होता है. तो इफ वी रिएक्ट इट विद NaOH तो ये बना लेगा PH3 plus NaH2PO. Wait one second. ओके, सो नेक्स्ट अगर इसके हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें तो ये PCl3 बनाएगा, बट अगर हम यही क्लोरीन एक्सेस में ले लें तो ये PCl5 बनाएगा. इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अगर SOCl2 लें ये बनाएगा PCl3 plus SO2 along with S2Cl2. ओके, और अगर हम इसकी रिएक्शन SO2Cl2 के साथ करवा दें इन दैट केस इट विल मेक PCl5 along with SO2. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन. कि ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है. कुछ नहीं, खुद ऐड हो जाता है बस. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO और CO2 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेस. कार्बन ऑक्सीजन एक्सेस में है या फिर नहीं है. इन कंप्लीट कंबशन हो रहा है या कंप्लीट कंबशन हो रहा है. नेक्स्ट, कंबशन रिएक्शन, तो यू आर अवेयर ऑफ दैट. दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगर हम HCl की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो Cl2 मिलेगा हमें. ओके, एंड दिस इज डेकन्स प्रोसेस एंड वी यूज इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2 गैस. अगर हमने प्रिपेयर करनी है Cl2 गैस तो इन दैट केस HCl को हम रिएक्ट करा देंगे ऑक्सीजन के साथ. और इफ वी रिएक्ट विद SO2 with oxygen in the presence of V2O5 तो हमें SO3 मिल जाएगा. and this reaction is known as contact process and we use it for the preparation of H2SO4. Now we will talk about important reactions of CO3 O3. So it is ozone. Okay, it is allotropic form of O2. Very reactive. So अगर हम ऑक्सीजन को एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सो अगर हम ऑक्सीजन रे उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते रहे तो उससे हमें 10% ओजोनाइट ऑक्सीजन मिल जाती है. ओके, की रिएक्शंस की बात करें तो O3 इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, बहुत पावरफुल होता है और ये क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं. ओके, तो ये क्या करता है, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना सकता है. ओके, so PbS plus C3 will give us PbSO4 plus O2 and NO plus 3 NO2 plus O2. This is very important. Okay, so because this reactions it explains कि how depletion of ozone layer happens. So, जैसे ओजोन लेयर में जाके NO2 जाती है तो NO जाती है तो NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन खराब हो जाता है. So let's explain depletion by NO. Now we will talk about group 17.
इसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं एंड दैट टू आर मोस्टली अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल दिखते हैं। अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो OF2 या O2F2 मिलता है। ओके, और ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है और इट इज यूज्ड टू रिकवर P4। अरे वेट, यूज टू रिकवर Pu, प्लूटोनियम। ओके, ये प्लूटोनियम को रिकवर करता है फ्रॉम वेस्ट। सो कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट है उसके अंदर से हमें अगर Pu निकालना है तो उसके लिए वी कैन ऐड O2F2। ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ PuF6 हमें जितना भी Pu होगा वहां से निकल आएगा। ओके, एंड वी कैन अगेन यूज इट फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स और प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दिस इज हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्ट करा करके Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 निकालते हैं एंड ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आल्सो एक्सप्लोसिव। Okay, and bromine react with O2 to give us Br2O, BrO2, BrO3, which are very less stable. Okay, so iodine. So if when iodine reacts with oxygen, it makes IO, which is stable. Okay, so actually oxygen के साथ जो आयोडीन रिएक्ट करता है वो भी स्टेबल बनाता है। फिर उसके बाद क्लोरीन, बट लीस्ट इज ब्रोमीन। अभी अगर आयोडीन रिएक्ट करेगा तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है। ओके, सो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है। ओके, वो नीचे आते रहता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती रहती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो ये स्टेबल बना लेता है। अभी क्लोरीन के केस में डबल बॉन्ड बनता है। सो क्लोरीन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो बिकॉज ऑफ दैट ये भी स्टेबल बना लेता है। ओके, बट ब्रोमीन ये इतना इतना भी नहीं होता है कि इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ जाए और ये इतना भी नहीं होता है कि डबल बॉन्ड बना दे। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ये बिल्कुल अनस्टेबल बनाता है कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। Okay, now they can also react with themselves to produce interhalogen. So क्या होता है, हेलोजन ही हेलोजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम इंटरहेलोजन बोलते हैं। ओके, सो ये किसी और के साथ रिएक्ट करा के या तो ये बनाएगा या ट्राई हैलाइड बनाएगा या पेंटा या हेप्टा। ओके, और ये जो होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। ओके, एंड एज दे आर पोलर उसकी वजह से सी पोलर है तो मतलब उनके ऊपर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। एंड अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हायर होता है देन नॉर्मल हेलोजेंस। नॉर्मल हेलोजेंस होते हैं उनसे ज्यादा सिंपल हेलोजेंस लाइक F2, Cl2, Br2, I2 इनसे ज्यादा होता है इनका इंटर हेलोजेंस का। सो इंटर हेलोजेंस ClF, IF7, ClF3, these are inter halogens. Okay, and if we talk about reactivity order, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो इसमें फिक्स होती है। फिक्स मींस F2 की सबसे ज्यादा करेगा, देन I मतलब इंटर हेलोजेंस, एंड देन X हेलोजेंस। ओके, सो इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है दैट इज फिक्स। F से फ्लोरीन, I से इंटर हेलोजेंस एंड X से नॉर्मल हेलोजेंस। तो F2 में बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। F फ्लोरीन ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर वो कंपाउंड बना लिया F2 वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है।
ओके, सो ये बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जो हेलाइट्स होते हैं इन्हें हमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ओके, उसका ऑर्डर होता है FiClI BrI Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। तो ये क्यों होता है? इफ यू रिमेंबर, हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमने पढ़ा था जो डाउन दी ग्रुप होती है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। खुद ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का रिड्यूस करेगा, तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसका ऑर्डर होगा ये। ओके, सी दिस इज हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट निकाल दिया हमने एसिडिक स्ट्रेंथ से, है ना? और यही हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयरन। देयर इज वन मोर थिंग कि जो हेलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन है, ये अपने से पीछे वालों का सबका ऑक्सीडेशन कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन करा दे I माइनस से, देन इट विल गेट कन्वर्ट इनटू F माइनस प्लस X0। So this X could be chlorine, bromine or iodine. And if we react Cl2 plus side, तो ये बना लेगा Cl minus plus Xe0 and this X could be Bri. Br2 plus Xi will make Br minus plus 2. Now this X could be iodine. Okay, अपने से कम वालों का ऐसे कर सकता है ये। Now important note, disproportional disproportionation of Cl2 and Br2, it increases in basic medium. अभी हम सबसे पहले क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं, देन इट विल मेक HCl along with HCl. So earlier it was 0, अभी इसमें ये -1 है, इन दिस केस +1 है, तो 1 1 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी हम इसका मीडियम चेंज कर दें और डाइल्यूट और कोल्ड NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं, देन इट विल बी NaCl plus NaOCl, अगेन 0 से -1 और +1। ओके, बेसिक मीडियम के साथ साथ Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाता है। और अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें कंसंट्रेटेड एंड हॉट NaOH के साथ, फिर NaCl प्लस NaClO3 बनाएगा, +1 और +5। ओके, और Br2 भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वाटर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। Cl2 reactions Cl माइनस और HCl की रिएक्शन हम KMnO4 के साथ करवा दें तो ये Cl2 बनाएगा। इफ हम इसकी रिएक्शन MnO4 के साथ करा दें फिर भी Cl2 बनाएगा। और अगर हम Fe2 के साथ F2 इज आल्सो विल रिएक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपने से जो नीचे वाले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करते जाते हैं। ओके, सो ये इसका क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करा देगा एंड Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम इंडस्ट्रियल रिएक्शन की बात करें तो Cl माइनस द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड ऑक्सीजन, Cl2 बनाएगा एंड वी कॉल इट एज Aiken's प्रोसेस। और अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो Cl2 गैस बनेगी एंड दैट टू ऑन एनोड। ओके, Cl2 will act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम Cl2 की रिएक्शन करा दें Fe2 प्लस के साथ तो इसको Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगी। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें SO2 के साथ तो इसको SO3 में कन्वर्ट कर देगी। ओके, अगर हम इसकी Al के साथ रिएक्शन करा दें तो AlCl3 में कन्वर्ट कर देगी। Reactions of Cl2 with ammonia, it is very important. अमोनिया अगर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और अगर Cl2 एक्सेस में है तो ये NCl3 along with HCl बनाएगा
एंड एफ फिर से हम अमोनिया की रिएक्शन कराएं Cl2 के साथ, बट दिस टाइम अमोनिया इज इन एक्सेस, देन सीधा ही N2 में कन्वर्ट हो जाएगा HCl अमोनिया. अभी ये जो है दे फर्दर रिएक्ट टू गिव अस NH4Cl. ओके, सो द फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हो गया N2 और NH4Cl. सो इन दिस it is in -3 oxidation state and getting converted into +3. And if ammonia is in excess, then it is getting converted into 0 oxidation state. Some important reactions of group 18th. First of all, ionization potential जो xenon का होता है that is same as ionization potential of O2. Okay? तो इसलिए जब O2 की रिएक्शन कराई थी एक साइंटिस्ट ने पीटी F6 के साथ, तो उन्हें they got this as a product and that was red color. और फिर जब O2 की जगह xenon लिया, then we got this as a product and that was also in red color. Okay, so it gave that जो ionization potential होता है वो मतलब इक्वल होता है ऑक्सीजन के साथ. Wait. So if you remember PCl5, PF5. So what is hybridization in PCl5? sp3. sp3d. Okay, अभी जो PCl5 है इसकी जो होती है just like this, ये भी ऐसी होगी. ओके, सो इनमें डिफरेंस, इट वाज इन वन क्वेश्चन इनमें डिफरेंस ऐसा था. तो इफ यू रिमेंबर, तो ये वाले जो होते हैं दैट आर एक्सियल बॉन्ड्स और ये होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स. ओके, दिस इज आल्सो एक्सियल एंड दीस आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स. So in PF5 it is observed that axial bonds जो हैं वो इक्वल होते हैं इक्विटोरियल के. Why? Because of फ्लक्सुअल बिहेवियर. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि PF5 में जो बॉन्ड लेंथ है इनमें मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन पे आ सकता है, या दे आर हैविंग ऑल 5 बॉन्ड्स इक्वल, तो वो इक्वल होते हैं इन दिस केस ओनली PF5. ओके, तो ऑक्सीजन तो नॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ तक -2 जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट जो ये है दैट डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट -2. इन दिस केस +2 एंड +4 ज्यादा प्रोमिनेंट होती है बिकॉज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर. ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं दोज आर मेटल्स. सो मेटेलिक कैरेक्टर होता है थोड़ा. some important structures, H2SO4, H2SO3. so H2SO4 सबसे पहले सल्फर बना लेना एंड जितने ऑक्सीजन है उतने बॉन्ड बना लेना, 1 2 3 4. ओके, नाउ